We are 2 minutes for going live. नहीं तो आंकड़े कही दे પછી તમારે નહીં બોલવાનું. Friends, now recording is on. I'm doing pin screen to the Visawada sir, and when he will invite Devendra sir, then the screen will be pinned to him. Visawada sir, recording is on. તમારી વાતો સંભળાય છે, મ્યુટ કરજો ત્યાંથી થોડું. Sir, please go live and start the session, sir. 9:29. મોકરિયા સર. Yes, sir. Please go live, sir. સર તમે ત્યાંથી સેશન સ્ટાર્ટ કરો. અહીંયા યુટ્યુબમાં ડેટા સ્ટ્રીમ નથી થતો સર, એટલે લાઈવ નહીં થઈ શકાય સર. Fine. Sir, without having a worry, please give the introduction of Devendra sir. YouTube ne tena tame side upar muko. It will be done, sir, in 1 hour. And meanwhile, I am sending Google Meet link to all the participants on mail also, sir. So, Visawada sir, shall we start? Yes, sir. Please give the introduction of Professor Devendra Tandel, and you can start the session, sir. Hello. So, just VR Visawala sir might be in some work actually. So, dear students. Hello. हाँ sir. Sir, please start from your side because Great, sir. Streaming is not possible, sir. Great, sir. So, respected teachers, my dear students and friends, say today's session is again a very important session, and it is presented by my colleague and technically very sound faculty member, Professor D.N. Tandel. Sir will be showing hands-on on Arduino. And what are the sensors used when some students select some science project at the school level. So what are the sensors are used, what are the application of the sensors, how to do soldering, how to mount your component on PCB. So આ બધું લઈને આવી રહ્યા છે તમારા સમક્ષ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટના ફેકલ્ટી મેમ્બર પ્રોફેસર દેવેન્દ્ર ટંડેલ. ટંડેલ સરના માસ્ટર્સ પછી રાઇટ નાઉ એમને અત્યારના ડોક્ટરેટ જોઈન કર્યું છે અથવા તો જોઈન કરવાની તૈયારીમાં છે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીમાંથી. અને હું આશા રાખીશ કે જે પાછલા જે પણ સેશન ગયા એ સેશનની જેમ જ આ સેશનને પણ તમે ખૂબ જ આવકારશો અને આપની ક્વેરી જે છે અમારા સમક્ષ લઈને આપશો. વગર કોઈ સમય વેસ્ટ કરીએ હું દેવેન્દ્ર ટંડેલ સરને કહીશ કે આ સેશન જે સ્ટાર્ટ કરશે. પ્રોફેસર ડી.એન. ટંડેલ, આપ પ્લીઝ સેશન સ્ટાર્ટ કરશો. ધન્યવાદ. Yes. Good morning, sir. Thank you so much for the kind introduction, and I hope I will try to cover the things that is discussed in the lecture. सर ने जितना भी इंट्रोडक्शन दिया है और जो भी बातें बताई उसके बारे में जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगा, and I will try to give my best. Right. First of all, this presentation or this particular session will be into the two part. First part हम लोग थोड़ा आर्डिनो के बारे में डिस्कशन करेंगे. आर्डिनो क्या है उसका थोड़ा थियोरेटिकल देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. एंड उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग प्रोग्राम कहाँ पे कैसे लिखते हैं, किससे कैसे आर्डिनो में प्रोग्राम को लोड किया जाता है और उसके साथ सेंसर्स को कैसे इंटरफेस किया जाता है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो मैं अभी मेरा स्क्रीन यहाँ से पीपीटी का शेयर करूंगा. देन आफ्टर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे. आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है. Okay. Is it visible? My PPT is visible on your screen? Yes. I'm just pinning that on the screen.
Yeah, it's visible. Okay. Sorry. I'll be just pinning the PPT actually. Fine. Now it's okay, Devendra. Please go ahead. Okay. Okay. Just for this particular session, please just pick the PPT, और उसके बाद हम लोग वो जो भी वीडियो मेरा है ना वो हम लोग वहां पे शेयर करेंगे, जहां पे एक एलईडी ब्लिंक हुआ है वहां पे डेमोस्ट्रेशन के बाद वो लिंक वो स्क्रीन हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है सर? Fine. ओके, सो बेसिकली द आर्डिनो, हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं आर्डिनो आर्डिनो व्हेनेवर सम स्टूडेंट्स आर हैविंग इंटरेस्ट इन लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में कोई सोचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाना है किसी को और कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है, तो सब लोग आर्डिनो के बारे में बात करते हैं, राइट? सो सबसे पहला एक थोड़ा सा मीथ है सबके दिमाग में कि आर्डिनो आर्डिनो क्या है। एक आर्डिनो इट इज अ पर्टिकुलर, ये जो बोर्ड है उसको आर्डिनो हम लोग एक बोर्ड है, बट बेसिकली इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर ओनली, राइट? ये जो है वो एक कंट्रोलर ही है। तो अभी कंट्रोलर क्या है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। जैसे कि आप लोग आपके घर पे कंप्यूटर पीसी सिस्टम यूज करते हो, तो उसके अंदर प्रोसेसर रहता है, ठीक है? तो प्रोसेसर और कंट्रोलर क्या रहता है, तो आपको पता है बहुत सारे टर्म्स आप यूज करते हो रेगुलर डे टू डे लाइफ में कि मेरे मोबाइल में या मेरे लैपटॉप में 8 GB का रैम है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, 126 का जीबी का एसएसडी है, ठीक है? फिर यूएसबी पोर्ट है, वो सारी चीजें आप बात करते हो, ठीक है? तो आपको एक डिफरेंस बता दूं कि आपके पास ये जो प्रोसेसर रहता है, जो आप हम लोग बोलते हैं कि i5 i7 इंटेल, ठीक है? तो i3, वो जो प्रोसेसर रहते हैं, वो प्रोसेसर जो भी रहते हैं वो ऑन चिप सिर्फ प्रोसेसर रहते हैं। और उस प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए अगर उसके साथ हम लोगों को कुछ प्रोसेस करना है तो बाहर से उसको कुछ सर्किटरी देना पड़ता है। मानो कि आपको प्रोसेसर के अंदर एक प्रोग्राम डालना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? तो प्रोग्राम की मेमोरी के लिए आप लोग यूज करते हो रैम, ठीक है? सॉफ्टवेयर डालने के लिए आप लोग यूज करते हो हार्ड ड्राइव। बाकी सारी चीजों को बाहर से इंटरफेस करने के लिए आप लोग यूएसबी ड्राइव यूज करते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें बाहर है। आपके प्रोसेसर का जो भी आईसी है उसके अंदर नहीं है। प्रोसेसर के आईसी के अंदर सिर्फ प्रोसेस करने के लिए स्पेस है, ठीक है? तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और ऐसे कंपोनेंट है वो जो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, बट उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग अगर माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात करें, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसका खुद का एक रैम इनबिल्ट है, उसका खुद का इनबिल्ट मेमोरी इनबिल्ट है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रैम भी है, हार्ड ड्राइव भी है, प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जैसे कि आपका प्रोसेसर है वो भी इसके अंदर है, और बहुत सारी चीजें जैसे कि एक क्लॉक, टाइमर और बहुत सारी चीजें इनबिल्ट है। सो उसको कंट्रोलर बोलेंगे। सो नाउ मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेसर और कंट्रोलर क्या है, ठीक है? तो प्रोसेसर आपको पता है, आपके कंप्यूटर में आप यूज करते हो, तो कंट्रोलर जो है वो ये सारी चीजें अंदर इनबिल्ट डालता है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर इज अ इनबिल्ट कंप्यूटर और प्रोसेसर, राइट? वन चिप प्रोसेसर, वन चिप कंप्यूटर इज द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है? तो ये चिप के अंदर सारी कुछ चीजें आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, द पर्टिकुलर कंट्रोलर कंटेन्स प्रोसेसिंग कोर इट मींस व्हाट? आपका प्रोसेसर, जैसे कि इंटेल i5 i3 ये प्रोसेसर है, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी प्रोग्राम क्या हो गया आपका? जो भी वो आपका हार्ड ड्राइव है वो हो गया आईओ पेरिफेरल्स, यानी कि आपका जो भी पोर्ट एस यूएसबी है वो सारी चीजें इसके अंदर ही आ जाती है। रैम, उसका जो भी रैम लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन है वो उसके चिप के अंदर ही आता है। तो आपको ये जो ब्लैक कलर का आईसी देखता है ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, एक ही चीज में सब, मेमोरी, इंटरफेसिंग, प्रोसेसर, सब उसके अंदर ही आ जाता है। इवन क्लॉक, टाइमर, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स, इट इज एक टोटल कंप्यूटर वी कैन से, ठीक है? और उसको एक्सटर्नली इंटरफेस करने के लिए हमको एडिशनली और कोई सर्किटरी नहीं लगेगी, ठीक है? अगर आपको मानो कि प्रोसेसर में आपको अगर हार्ड ड्राइव लगाना है तो हार्ड ड्राइव के इंटरफेस के लिए इंटरमीडिएट और एक सर्किट चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर हार्ड ड्राइव इनबिल्ट है। समझ में आया? सो दैट इज बेसिकली अ माइक्रो कंट्रोलर। अभी हम लोग बोलेंगे कि आर्डिनो क्या है, ठीक है? सो बेसिकली आर्डिनो इज दी, यहाँ पे दो चीज है। आर्डिनो इज द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं? कि अगर आप आर्डिनो के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो जितनी भी चीजें रिलेटेड टू आर्डिनो है, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ,
हार्डवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जितनी भी हार्डवेयर आपको सर्किटरी चाहिए वो आपको परचेस करनी रहती है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर, उसके प्रोग्राम, उसकी लाइब्रेरीज जो भी होती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. इट इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, इट इज अ कंप्लीटली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, राइट. और आर्डिनो जो भी है वो एक ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर विथ यूएसबी प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज, जिसको हम आर्डिनो बोलते हैं. ठीक है, तो आर्डिनो जो भी रहता है वो एक पर्टिकुलर बोर्ड है. ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर बोर्ड, इट्स नेम इज आर्डिनो. वो कंट्रोलर का नाम नहीं है. ठीक है, इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर का नाम कुछ अलग है, लेकिन जो पूरा बोर्ड है जिसके ऊपर हम डायरेक्टली यूएसबी प्लग करके हमारे लैपटॉप में लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नली कुछ सर्किटरी कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे रेडीमेड जो भी ब्लॉक है, वो जो बोर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्डिनो बोलेंगे. ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट numbers of things on it, you can interface it with it. ठीक है, so it's a very easy to use hardware and software, right. ये एकदम simple user friendly hardware है. Even on the particular internets also lots of many open source guides and programs, and we can say the courses are available on the Arduino, right. So even आप अगर स्कूलिंग स्टूडेंट्स है, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन आल्सो वर्क ऑन द आर्डिनो वेरी इजीली. सिर्फ आपको आर्डिनो परचेस करना है और थोड़ा टाइम इंटरनेट पे भी आप स्पेंड करोगे तो आप आर्डिनो का प्रोग्रामिंग सीख सकते हो. इतना इजी है. बेसिकली जो भी आर्डिनो है उसका यूज स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं. काफी सारे लोग अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं. आपको पता नहीं हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. आपने देखा होगा कि स्टूडियो में सब फोटोग्राफी करते हैं, तो फोटोग्राफी जब करते हैं ना, तो फोटोग्राफी में आपका जो भी पर्टिकुलर फोटोग्राफर है वो सेंस करता है, अपनी आंख से देखता है कि जो भी जिसका भी फोटो खींचना उसकी फाइल जो स्माइल प्रोसेस क्या है, स्माइल फेस स्माइल का स्टेटस क्या है, वो स्माइल होने के बाद ही अपना फोटो क्लिक करता है. तो एट प्रेजेंटली आर्डिनो के इंटरफेस के साथ ऐसे भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है जहां पे वो फेस को रिकॉग्नाइज करता है, स्माइल को रिकॉग्नाइज करता है और ऑटोमेटिकली क्लिक करता है. सो ऐसी भी बहुत सारी एप्लीकेशन वहां पे हो सकती है. ठीक है, सो आर्डिनो के बेस पे बहुत बड़े डेवलपमेंट भी हुए हैं. ठीक है, सो बेसिकली आर्डिनो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इट इज प्रोग्रामिंग एपीएल आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू द सी. ये सिमिलर सी लैंग्वेज से बहुत सिमिलर है. सिर्फ उसके कुछ खुद के सिंटैक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिंटैक्स है. अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी टू प्रोग्राम. ठीक है, so it is simple to interface with the a very small technology and what is a very small investment. So अभी भी ये जो पर्टिकुलर 2012 में आर्डिनो को बेस्ट पर्टिकुलर आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर डेवलप प्लेटफॉर्म, इट इज द विनर ऑफ वर्ल्ड बेस्ट इंटरेक्शन अवार्ड इन 2012, राइट. जो गूगल ने स्पॉन्सर किया उसके लिए भी उसको अवार्ड भी मिला है, क्योंकि एट प्रेजेंटली बहुत आर्डिनो का जो पॉपुलैरिटी और जो एप्लीकेशन है बहुत ऊपर चला गया है. और इवन लेटेस्ट जो प्रो कंट्रोलर्स है वो कंट्रोलर्स इवन बहुत सारे अच्छे प्रिसाइशन के लिए और अच्छे एप्लीकेशंस के लिए भी अवेलेबल है. ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर डेवलपमेंट बोर्ड व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जस्ट मिनट, लेट मी पुट वन लेजर पेन. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ATmega 8 micro. So this is the only the microcontroller chip. This is only the microcontroller chip. Other all the things are connected with this microcontroller. Then it is called Arduino development board. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Arduino development board. इसके बहुत सारे पार्ट है यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ATmega माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर का चिप है, ये एनालॉग इनपुट. अगर आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल या एडवांस में किसी को अगर पता है, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो भी एप्लीकेशन है ना, वहां पे हम लोगों को एनालॉग सिग्नल चाहिए. अभी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकते हैं, फिर भी मानो कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर का जो सेंसर्स होता है ना, उसका आउटपुट एनालॉग रहता है. एनालॉग यानी डिजिटल में क्या होता है, आउटपुट आपको 0 या 1 में मिलता है. लेकिन हम लोग टेम्परेचर मेजर 0 और 1 से नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर वेरी हो रहा है. ठीक है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, 19 डिग्री, उसमें वेरिएशन हो रहा है.
ठीक है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, तो वो एनालॉग क्वांटिटी है, वो डिस्क्रीट या कोई डिजिटल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटी है, हम लोगों को पता है कि हमारे आसपास कितनी सारी एनालॉग क्वांटिटी है। इवन मोर देन द डिजिटल क्वांटिटी वी हैव अ एनालॉग क्वांटिटी इन अ हायर एप्लीकेबल एरियाज। ठीक है, तो वो सारी अगर एनालॉग क्वांटिटी को हम लोगों को मेजर करना है, मुझे कहीं पे टेम्परेचर मेजर करना है, या मुझे कहीं पे ह्यूमिडिटी मेजर करना है, मुझे कहीं पे मॉइस्चर मेजर करना है, कहीं पे वोल्टेज मेजर करना है, कहीं पे करंट मेजर करना है, तो वो सारी चीजें और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आपके आसपास में भी अगर आप सोचोगे तो आएगा कि ये ऐसा ऐसा चीज मुझे मेजर करना है, तो वो सारी चीजें एनालॉग क्वांटिटी में रहती है। ठीक है, अगर वो एनालॉग क्वांटिटी में है तो उसको एनालॉग क्वांटिटी को इंटरफेस करवाने के लिए हम लोगों को उसको प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल क्वांटिटी को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया? माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ डिजिटल क्वांटिटी को एक्सेप्ट करता है। तो अगर एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी के साथ लेना है तो इंटरमीडिएट एक क्लियर चीज के हम लोगों को चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फिक्स्ड। ठीक है, वी मस्ट रिक्वायर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अभी जो पुराने माइक्रो कंट्रोलर जो रहते थे 8051 और वो सारे जो माइक्रो कंट्रोलर है अभी भी यूज होते हैं, इवन टिल डेट आज भी जो एडवांस कंट्रोलर्स है उनको एक्सटर्नली एनालॉग टू डिजिटल सर्किटरी चाहिए। आप एनालॉग सिग्नल पहले वो सर्किट को दो, वो सर्किट आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके देगा, फिर आप माइक्रो कंट्रोलर को दोगे और उसका अलग से प्रोग्राम लगेगा। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इनबिल्ट अलग से एक मेमोरी मैप रहेगा जहां पे आप प्रोग्राम डालोगे और उसके साथ ही इंटरफेस करेगा। अभी जो आर्डिनो है उसके अंदर एक बेस्ट फैसिलिटी है जिसके लिए वो बहुत फेमस है, वो है इसका इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट हैज अ इनबिल्ट, इसके पास खुद का इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। सो आप सिर्फ एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी जो पिन है, यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4 5 एंड तो जो भी ये 0 1 2 3 4 5 है 5, ये सारी पिन एनालॉग इनपुट पिन है। यानी कि इसके अंदर आप 5 एनालॉग सिग्नल दे सकते हो, और ज्यादा चाहिए तो दूसरे आर्डिनो बोर्ड्स भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक पावर सॉकेट है जहां से आप लोग 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जैसे वोल्टेज आउटपुट में ले सकते हो। ठीक है, और ये सारी ये जो भी है लाइट्स है, एलईडी है, तो आप अगर किसी सर्किट के साथ बाहर सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हो तो यहाँ से एक सिग्नल इंडिकेशन मिलेगा, एलईडी आपका ग्लो होगा, ऑन ऑफ होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा आर्डिनो किसी सिस्टम के साथ इंटरफेस कर रहा है। ठीक है, ये ही पर्टिकुलर वोल्ट पावर रेगुलेटर्स है, यानी कि आर्डिनो जो भी है उसको पावर अप करने के लिए हमें बाहर से सप्लाई देना पड़ता है। वो सप्लाई हम थ्रू दिस पर्टिकुलर पावर पोर्ट दे सकते हैं या फिर यूएसबी से दे सकते हैं। तो वो जो भी चीज है उसको रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी माइक्रो कंट्रोलर या जितनी भी आईसी है वो पावर डिस्टर्बेंस के लिए बहुत ही डेलिकेट रहती है। ठीक है, अगर उनको 5 वोल्ट चाहिए तो इट रिक्वायर्स कंप्लीटली 5.00 वोल्टेज। इट कैन नॉट like withstand the variation in voltage from 4.9 to 5.1 और 5.2। तो आप अगर उसको 4.8 4.7 या 4.8 वोल्टेज दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इट रिक्वायर्स कंप्लीट 5 वोल्ट। अगर आप लोगों ने 5.23 5.5 ऐसा 5 वोल्ट से ज्यादा दे दिया तो इट कैन इवन डैमेज। तो दे आर वेरी सेंसिटिव विद द सप्लाई वोल्टेज। सो इसके लिए पावर रेगुलेटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पावर प्लग है जहां से आप बाहर से एडेप्टर कनेक्ट करके उसको पावर अप कर सकते हो। और एक चीज इसके अंदर जो भी फैसिलिटेड है वो ये है एफटीडीआई यूएसबी। तो आपको अगर आपके कंप्यूटर के साथ इसको सीधा कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप यूएसबी पिन से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये उसका जो भी इंटरफेसिंग है कन्वर्टर है वो डायरेक्टली अवेलेबल है। जो आप अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में अगर मॉनिटर वाला, लैपटॉप नहीं कंप्यूटर, तो आपको पता होगा कि मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए पीछे से एक कॉम्पोर्ट ब्लू कलर का हम लोग वायर लगाते हैं जिसको हम लोग कॉम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर उसको तो पुराने जो माइक्रो कंट्रोलर्स जो पहले रहते थे, ठीक है, पुराने जो बोर्ड रहते थे उसमें वो पॉट आता था, वो कॉम्पोर्ट, तो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर भी एक कॉम्पोर्ट लगाना पड़ता था और उसका अलग से ड्राइवर रहता था, वो भी उन लोगों ने निकाल दिया। इजी टू यूज, डायरेक्टली आप अपने यूएसबी यानी कि आपके लैपटॉप की यूएसबी में, कंप्यूटर की यूएसबी में प्लग कर दो, आपका माइक्रो कंट्रोलर काम करना चालू हो जाएगा।
ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वन मोर फैसिलिटी गिवन बाय देम। ये टेस्ट एलईडी है, यहाँ पे एक लाइट एलईडी दिया है, जो ये यहाँ पे आप देखोगे तो डिजिटल आईओ लिखा है, जहां पे आप डिजिटल इनपुट दे सकते हो या वहां से डिजिटल आउटपुट ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको वेरी क्लियरली बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जो देखोगे, यहाँ पे 0 से लेके 13, यानी कि हमारे पास टोटल 14 पिन है, जिसके ऊपर आप डिजिटल इनपुट दे सकते हो और वहां से डिजिटल आउटपुट ले सकते हो। बट एक चीज याद रखना, एनालॉग जो भी पिन है वहां से सिर्फ हम लोग एनालॉग इनपुट ले सकते हैं, वहां से एनालॉग आउटपुट नहीं ले सकते। सो जो एनालॉग पिन है वो वन वे है, सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, वहां से ले नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 13 पिन है वहां पे हम लोग एनालॉग इनपुट दे भी सकते, डिजिटल इनपुट दे भी सकते हैं और डिजिटल आउटपुट ले भी सकते हैं। और ये जो एलईडी टेस्ट एलईडी है, वो ये जो 0 to 13 नंबर जो का पिन है, वो 13 नंबर के पिन के साथ इनबिल्ड इंटरनली कनेक्ट है। तो आपको अगर बोर्ड को टेस्ट करना है, उसका वर्किंग टेस्ट करना है, तो यू कैन डायरेक्टली डू दैट। उसके ऊपर है वो 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल। क्रिस्टल क्यों होता है, तो हर एक माइक्रो कंट्रोलर का खुद का क्लॉक रहता है, लेकिन उसका क्लॉक का फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बाहर से डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एक क्रिस्टल रहता है और उसका भी डिटेल में बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, तो वो भी बहुत एडवांस लेवल का है, तो मैं वो उसके बारे में ज्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा। बट आपको जो भी आपका जो भी क्लॉक, यानी कि आपका टाइमर और टाइमिंग सेट करने के लिए आपको कोई रेफरेंस चाहिए, जो क्रिस्टल से मिलता है। सो क्रिस्टल इज बेसिकली इट जनरेटिंग द फ्रीक्वेंसी, नथिंग एल्स, राइट। और उसके बाद है पावर एलईडी, जो आप जब भी आपका माइक्रो और ये आर्डिनो बोर्ड ऑन होगा, जब तक ऑन रहेगा तब तक ये पावर एलईडी ऑन रहेगा, ठीक है। सो see here, these are the different types of Arduino boards available in the market, right? जो आप लोगों ने ये देखा उसको हम लोग बोलते हैं Arduino Uno। ये जो है Arduino Uno है, UNO Uno। ये फर्स्ट वाला है Arduino Mega, ये है LilyPad, Arduino Mini and Arduino Nano। सो बेसिक ये 5 टाइप्स के बेसिक Arduino कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, जो अपनी डिफरेंट आईओ पिंस के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे कि आप लिलीपैड देख सकते हो, तो लिलीपैड में सिर्फ डिजिटल पिन अवेलेबल है और एनालॉग पिन अवेलेबल है, उसके अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं है। इट डजंट हैव एनीथिंग एल्स, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो जो आपके रोबोट्स रहते हैं, रोबोट्स के मूवमेंट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आर्डिनो मेगा ये सेम इट इज आर्डिनो मेगा। इसके अंदर जो चिप रहता है वो वी कैन से इट इज नॉट एडवांस चिप, और इसके अंदर जो कंट्रोलर है यहाँ पे आप देख सकते हो वो उससे बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं है। दोनों सेम है, दोनों के अंदर डिफरेंस है कि दोनों का जो इनपुट आउटपुट पिंस है बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कंपेयर टू आर्डिनो नैनो हमने देखा कि यहाँ पे 13 पिन है, तो इसके अंदर जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन रहती है वो कितने रहती है, 52 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन कितनी मिलती है, 52 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। एंड इसके अंदर जो एनालॉग इनपुट है उसकी 16 पिन 16 पिन रहती है। सो इट इज कॉल्ड मेगा। सिमिलर टू दैट यहाँ पे मिनी है, यहाँ पे नैनो है, ठीक है। मिनी और नैनो में भी सेम, इसके अंदर भी हम लोगों को 12 डिजिटल इनपुट आउटपुट मिलेंगे और 5 एनालॉग मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको 8 और यानी कि 8 डिजिटल इनपुट आउटपुट मिलेंगे और 5 एनालॉग आउटपुट इनपुट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आर्डिनो के डिफरेंट बोर्ड। सो ये एक चीज सोच लो और फिक्स कर लो कि आर्डिनो इट इज नॉट अ कंट्रोलर। Arduino is not a controller. Arduino is a development board which contains the controller. इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन Arduino जो है वो पूरा एक डेवलपमेंट बोर्ड है। हाँ, बहुत सारे चीज में आप बहुत बार स्टूडेंट्स को भी एक कंप्लेन रहता है, इश्यू रहता है कि हम जब Arduino के ऊपर प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हैं तो काफी सारे फैकल्टीज भी ऐसा बोलते हैं कि Arduino क्या है, आप थोड़ा Arduino पे प्रोजेक्ट मत करो। तो वहां पे भी आप एक चीज डिफेंड कर सकते हो कि Arduino इट इज ऑल्सो कंट्रोलर, ठीक है। ये भी कंट्रोलर ही है, जैसे ही 8051 और वो सारे कंट्रोलर से ऐसे ही कंट्रोलर है, उसके ऊपर भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन सकते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यू क्या रहता है, वो स्टडी नहीं करते, ठीक है, वो कंट्रोलर के बारे में स्टडी नहीं करते, फिर आर्डिनो के जो भी ओपन सोर्स अवेलेबल है उससे सिर्फ डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं कि सर इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। नहीं, यू जस्ट स्टडी द कंट्रोलर बोर्ड फर्स्ट इन डिटेल, उसमें क्या है, कैसे मेमोरी लोकेशन है, उसका इनपुट आउटपुट पिन कितने हैं, कैसे है, क्या है, उसका लेवल क्या है, वो सब पहले डिफाइन करो और उसके साथ आप उसको फिर आप एक्सप्लेन करो। समझ में आया? ठीक है। सो अगर आपको आर्डिनो इंटरफेस करना है तो आर्डिनो के साथ बहुत सारी इनबिल्ट फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे जिसको बोलते हैं सील्ड्स। सील्ड्स यानी क्या? रेडीमेड सर्किट। रेडीमेड सर्किट आपकी आर्डिनो की जो पिन है वो पिन के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड होकर डिजाइन होती है, तो आपको आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर सिर्फ फिक्स करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे वॉल्यूम्स बटन जैसे दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इससे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो। तो उसको कैसे डिजाइन किया है, नीचे देखो आर्डिनो की बोर्ड की पिन से, उसकी पिन के ऊपर आप डायरेक्टली फिक्स कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सील्ड्स बोलेंगे, सील्ड बोलेंगे। यहाँ पे आप देखो ये आपका ड्राइवर आईसी है, ठीक है, वो ड्राइवर आईसी आप डायरेक्टली इसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखो हम लोगों ने 1 2 3 4 चीज ऊपर एक के ऊपर एक लगाई है, तो दिस आर कॉल्ड सील्ड्स, ठीक है, जिसको हम लोग सील्ड्स बोलेंगे। उसके अंदर जैसे कि एथरनेट का सील्ड आएगा, जिगबी का सील्ड आएगा, टच स्क्रीन का सील्ड आएगा, और बहुत सारी। यहाँ पे आप देखो ये टच स्क्रीन के साथ ये पूरा सील्ड है, जिसको आप आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली फिक्स ही करना है। तो अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड अगर आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो तो भी आर्डिनो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आर्डिनो के ऊपर एक्सटर्नल पावर हम लोगों को देना है, तो उसके लिए आपको चाहिए 9 वोल्ट टू 12 वोल्ट डीसी, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी है जिससे आप आर्डिनो को ऑन कर सकते हो, एक यूएसबी और एक एक्सटर्नल पावर। बट एक चीज आपको ध्यान में ऑलवेज रखना है, यहाँ पे आप देखो EXT और यूएसबी लिखा है, ठीक है। अगर आप आर्डिनो को यूएसबी कनेक्टर के साथ पावर अप कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है उसको यहाँ पे यूएसबी पे रखना है, और अगर एक्सटर्नल पे रख रहे हो तो एक्सटर्नल पे रख रहा है, क्योंकि आप जब भी यूएसबी को आप यहाँ पे जो यूएसबी केबल रहता है उसके अगर कंप्यूटर में लगाओगे तो कंप्यूटर भी उसको 5 छोड़ देगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ से दूसरा एडेप्टर कनेक्ट कर दिया तो दो ड्यूअल पावर सप्लाई की वजह से वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे लिखा है द प्लग मस्ट बी सेंटर पॉजिटिव दैट इज मिडल पॉइंट ऑफ द प्लग। तो अगर आप काफी बार कैसा होता है कि आर्डिनो को हम लोगों को रिमोट लोकेशन पे रखना होता है, रिमोट लोकेशन पे रखना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है कि रिमोट लोकेशन पे रखने के लिए आपको बैटरी कनेक्ट करना है। तो अगर ये बैटरी कनेक्ट करने के लिए देखो ये केबल बना है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये केबल बना रहे हो तो इसका जो भी ये सेंटर, ये पिन आपको दिख रहा होगा, ये बाहर का पोर्शन है और ये अंदर इंटरनल पोर्शन, तो इंटरनल पोर्शन को पॉजिटिव और बाहर के पोर्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी ये दो वायर है, ये वायर में से एक वायर इंटरनल के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एक्सटर्नल के साथ कनेक्टेड है। तो इंटरनल का जो कनेक्शन है उसको हम लोगों को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, देन इट विल बी पावर अप, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ पोलैरिटी एंड शॉर्ट सर्किट्स, थैंक। सो नाउ अगर आपको आर्डिनो को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, दैट इज द वन बिग पॉइंट, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वो बहुत 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 फेमस, और वी कैन से वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन में ऐसे क्यों कर रहा हूं कि आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आर्डिनो कितना इजी है। तो अगर आपको कंट्रोलर के माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, उसके ऊपर चाहिए आपका माइक्रो कंट्रोलर के आपका यूएसबी के साथ इंटरफेस करने के लिए कन्वर्टर, उसका कन्वर्टर से अलग सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप लोगों को चाहिए प्रोग्राम लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम लिखने के लिए पॉपुलरली पीपल्स आर यूजिंग केल, तो केल के ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड करने के लिए आप लोगों को अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, जिससे भी फ्लैश सॉफ्टवेयर होता है।
तो फ्लैश सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप आर्डिनो आपका जो भी प्रोग्राम है उसके ऊपर लोड कर सकते हो। उसके लिए आपको एक पहले बाहर से एक्सटर्नली हेक्स फाइल जनरेट कराना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस अगर आप एक 8051 जैसा कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आपको स्मॉल एप्लीकेशन के लिए छोटा सा बहुत छोटा सा एक सर्किट बनाना है और उसके लिए अगर आपको कंट्रोलर यूज करना है तो ये सारी चीजें जो है वो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरे तरफ से कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ मैन पावर। तो इतना छोटा काम के लिए इतना ज्यादा टाइम हम लोग को स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आर्डिनो। आर्डिनो का बेसिक हम लोग बोल सकते हैं कि फैसिलिटी क्या है, उसका खुद का एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो आप कंपाइल करेगा, हेक्स फाइल जनरेट करेगा और आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर अपलोड भी कर देगा। आपको कुछ एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इट कैन अपलोड द प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने वो आपको मैं बताता हूँ कैसे प्रोग्राम अपलोड होता है, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें भी आपको बताता हूँ कि उसके लिए अब मेरे 2 विंडो भी लगेंगे, वो मैं आपको एट अ टाइम ऑफ डेमोस्ट्रेशन बताऊंगा। ठीक है, सो यहाँ से जो भी होता है वो आपका 2 चीज होता है, समझ में आया? तो इसके अंदर सब कुछ इंटरनली है, आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखना है और आपको एक बटन दबाना है जिससे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, चेक हो जाएगा, एरर भी चेक हो जाएगा, उसके बाद आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर लोड भी हो जाएगा। और बहुत बड़ी चीज है कि जो ये आईडीई arduino.ide सॉफ्टवेयर है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ओपन सोर्स है। और जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको जो बोलते हैं विंडोज बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 या विंडोज 8, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डायरेक्टली आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग में चाहिए सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर और आर्डिनो बोर्ड एंड यूएसबी केबल। तो आप आर्डिनो के ऊपर काम करना डायरेक्टली शुरू कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी एडिशनल एफर्ट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी फेमस। तो अभी हम लोग थोड़ा आर्डिनो आईडीई के बारे में सोच बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आर्डिनो आईडीई जो है उसके अंदर हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोसेसिंग लैंग्वेज रहती है। प्रोसेसिंग लैंग्वेज में क्या रहती है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या है और आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा। सी लैंग्वेज में आप लोग ने फोर लूप यूज किया होगा, इफ एल्स लूप यूज किया होगा, स्विच केस यूज किया होगा, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस यूज किए होंगे। ठीक है, और दूसरी यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी सी प्रोग्रामिंग में यूज किए होंगे। तो वो सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग होती रहती है ना, उसको हम प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग कहते हैं। और आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर फिक्स्ड सम स्टेटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि इट हैज अ वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। इट हैज अ वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप, 2 लूप रहते हैं, सिर्फ 2 ही लूप। इसके अंदर ही पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। राइट, उसके अलावा एक जो हम दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे कि केल, तो उसमें वॉइड रो भी होता है, लेकिन इसके अंदर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल है आर्डिनो के अंदर। 3 टाइप के वेरिएबल यूज रहते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर एंड लॉन्ग। कैरेक्टर, इंटीजर एंड लॉन्ग। राइट, कैरेक्टर टू डिस्प्ले सम वर्ड्स, सम कैरेक्टर्स। राइट, सो स्पेलिंग समझो कि इसको बोलते हैं, उसको कहीं भी डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोगों को वेरिएबल चाहिए, दैट इज कैरेक्टर। इंटीजर, इट स्टोर्स द नंबर्स, आपको नंबर स्टोर करने के लिए चाहिए, वो इंटीजर है। एंड लॉन्ग, इट इज द लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग कैरेक्टर। तो बड़े इंटीजर और बड़े नंबर्स या बड़े कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोगों को लॉन्ग चाहिए। सो इट हैज ओनली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरी सिंपल। इट हैज अ फ्यू रिजर्व कांस्टेंट आल्सो, राइट, जिसको हम लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हाई, लो, इनपुट, आउटपुट। ठीक है, तो अगर आपको किसी पिन को हाई करवाना है, यानी कि किसी पिन को ऑन करवाना है, तो आपको कुछ उसके लिए एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, मानो कि सिंपल मेरे पास आर्डिनो के अंदर 0 1 2 3 4 लेके 13 तक की पिन है, उसमें पिन नंबर 2 में यूज कर रहा हूं। पिन नंबर 2 को मुझे ऑन करवाना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 2 कॉमा हाई लिखो, आपका ऑन हो जाएगा। दैट इज सिंपल। उसको ऑफ करना है, 2 कॉमा लो लिखो, ये ऑन हो जाए, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, किसी पिन को आपको इनपुट डिफाइन करवाना है, किसी पिन को आपको आउटपुट डिफाइन करवाना है, दैट आल्सो यू कैन डिफाइन।
सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट लिखना है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, एक प्रोग्राम भी बताऊंगा जिसके अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग करना है तो क्या क्या स्टेप्स करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सिर्फ आईडी को ओपन करो, आपका प्रोग्रामिंग कोड लॉजिक लिखो, उसको कंपाइल करो, चेक करो, फिर आपका आर्डिनो को लैपटॉप के साथ अटैच करो। अगर ये डायरेक्टली एसएस नहीं हुआ है तो आपको एक ड्राइवर डालना पड़ेगा यूएसबी एफटीडीआई का, वो भी ओपन सोर्स अवेलेबल है, लेकिन इन विंडोज 10 मेजोरिटी ऑफ द केस 99% इट विल डायरेक्टली अटैच, ठीक है। फिर आपका बॉट सेटअप करो, बॉट रेडी करो और आप क्लिक करके प्रोग्राम को अपलोड करो, आपका आर्डिनो काम करना शुरू हो जाएगा। और कुछ भी एडिशनल सर्किटरी या कुछ भी एडिशनल सॉफ्टवेयर या कुछ भी एडिशनल चीज नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऐसा नहीं, स्कूल के बच्चे भी इजीली आर्डिनो को यूज करते हैं। नाउअडेज आर्डिनो इज अ वेरी पॉपुलर इन स्कूल आल्सो, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट आर्डिनो के बेस पे भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज अ वेरी गुड, राइट, ठीक है। सो ये थोड़े मोटिवेशनल स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने डाले हैं मेरी तरफ से आपको बताने के लिए कि आर्डिनो कितना अच्छा है, ठीक है। These are the few just projects that you can use यूजिंग आर्डिनो है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो आर्डिनो से। ये तो बहुत छोटा लिस्ट है, आई कैन से ये जो लिस्ट है वो 0.1% है कंपेयर टू लिस्ट यू कैन डेवलप बाय यूजिंग दी आर्डिनो, ठीक है। तो मैं ये चीज बता देता हूँ, ये जितनी भी लिस्ट है ना वो सिर्फ 0.1% है, उसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें बन सकती है यूजिंग आर्डिनो, ठीक है। ये देखो आर्डिनो के यूज से क्या क्या चीज बनाई है, ठीक है। तो आपका जो भी हेल्थ मॉनिटर है वो डायरेक्टली बाय आर्डिनो इंटरफेसिंग मोबाइल के साथ करके आपका जो भी आपका ट्रेडमिल है या साइकिलिंग है उसके साथ ये आप पूरा उसके ऊपर करा सकते हो। सो आर्डिनो इज हाउ इट इज क्रिएटिव दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर। ये जो पर्टिकुलर फ्लोर है वो फोर फ्लोर पूरा ऊपर नीचे हो सकता है। जो आदमी बैठा है और ऊपर जो खड़ा है वो रिमोट से ये फ्लोर को ऊपर नीचे कर सकता है। आर्टिस्ट ऑल्सो डेवलप भी थिंग्स यूजिंग द आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो के साथ आप अपने घर पे आर्डिनो एट होम क्या कर सकते हो, आर्डिनो से आप आपका अलार्म बना सकते हो, आर्डिनो से आप अपना वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर सकते हो, आर्डिनो के साथ आपके घर की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। आर्डिनो विथ एंड्रॉइड, आर्डिनो विथ एंड्रॉइड, आप आर्डिनो को सीधा आपके मोबाइल के साथ इंटरफेस कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ और वाईफाई, और आपके घर की ये सारी चीज आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग आर्डिनो, ठीक है। सो ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो सकते हैं अगर आपको करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो आर्डिनो इज अ वेरी पॉपुलर, फाइन। सी हियर आपके पास एक टच स्क्रीन टैबलेट है, उससे आप ऑन ऑफ डायरेक्टली करवा सकते हो यूजिंग आर्डिनो। इवन जैसे कि आप नीचे की पिक्चर में देख सकते हो मोशन सेंसर है उससे करवा सकते हैं, माइक्रोफोन से करवा सकते हैं। अगर आप किसी तरह का आपने मोशन सेंसर बनाया और कोई लाइट सेंसर लगाया तो आप अपने खुद के बॉडी के पोस्चर या गेस्चर से भी आप किसी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो दैट इज हाउ इट्स अ वेरी पॉपुलर, फाइन एंड वेरी हैंडी टू यूज यू कैन से, ठीक है। सी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर इट इज अ वन ऑडियो प्लेयर, राइट। सो जो भी ऑडियो प्लेयर है वो पहले हम लोगों को सीडी प्लेयर या वो सारी चीजें, तो ऑडियो प्लेयर आप डायरेक्टली एक मेमोरी एलोकेशन के साथ मानो कि इससे जस्ट इट इज जस्ट अ पिक्चर टू विजुअलाइज द थिंग्स, ठीक है। तो आपके पास अगर मानो कि एक आर्डिनो के अंदर एक मेमोरी इंटरफेसिंग भी आता है, तो मेमोरी इंटरफेसिंग के आप मेमोरी कार्ड के अंदर सॉन्ग लोड करके आर्डिनो से आप MP3 प्लेयर भी बना सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। दैट इज व्हाट फ्रॉम दिस पिक्चर आई वांट टू कन्वे। सो आप सोच सकते हो कि MP3 प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ऑन ऑफ कंट्रोलर, देन उसके बाद आपका सिस्टम कंट्रोलर, बहुत सारी चीजें आर्डिनो के साथ हो सकती है।
अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज आ रही है कि रिसेंटली द वेरी बिग प्रोजेक्ट बीइंग ट्राइड बाय द आर्डिनो इज क्रिएटिंग कंप्यूटर विद द आर्डिनो। जैसे कि आपको पता होगा कि इंटेल इनसाइड ऐसे लिख के आता है, तो आर्डिनो इनसाइड। So someone is trying to develop the computer even using the Arduino, right? When someone is trying to develop the computer, it is for sure it will be for the very small applications only. So यहाँ से एक चीज मैंने रिजर्व रखी आपको बताने के लिए कि Arduino it is a basically a controller, it is a basically a controller and controllers जो भी रहते हैं वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन होते हैं, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो आपने एक एप्लीकेशन के लिए उसको डिजाइन कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, तो उसको दूसरी डिजाइन के लिए आप यूज नहीं कर सकते। मानो कि आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपने उसका पूरा पूरा प्रोग्रामिंग करके वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक कर दिया। ऐसे कैसे ऑटोमेटिक कर दिया कि आप लोगों ने अंदर क्लोथ्स सीधे डाल के उसको बंद कर दिया, स्टार्ट बटन दबाया, बाकी की सारी अंदर की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रही है। तो आप वो भी सारी जो जो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है वो थ्रू कंट्रोलर हो रही है। तो वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, वो स्पेसिफिक स्मॉल एप्लीकेशन हो गया। अभी अभी वो सर्किट आप निकालोगे और बोलोगे कि मुझे ये सर्किट मेरे एसी में यूज करना है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आपको प्रोग्राम भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, सर्किट भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आर्डिनो कंप्यूटर आ रहा है तो इट हैज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओनली, वो मल्टीपर्पज एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अभी मैं मेरे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप से एक आर्डिनो का बोर्ड भी चला रहा हूँ, आर्डिनो को प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ, वो सारी सारी चीजें मैं लैपटॉप या प्रोसेसर से कर सकता हूँ। अगर मेरे पास आर्डिनो कंप्यूटर है तो उसके साथ में ये बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। तो वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक यूज के लिए बनेगा लैपटॉप कंप्यूटर। जैसे कि मुझे ये कंप्यूटर से क्या करना है कि मुझे कंप्यूटर से पर्टिकुलर बटन दबाने के बाद एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा, तो मैं वही कर सकूंगा। डिस्प्ले पे देख लूंगा कि भाई ये मैंने 1 नंबर दबाया तो 1 नंबर से ये वीडियो प्ले हुआ, 2 नंबर से दबाया तो 2 नंबर से ये वीडियो प्ले हुआ, 3 नंबर दबाया तो 3 नंबर से कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा। तो वो ही सिर्फ लिमिटेड चीज हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कैन डू विद द Arduino. Fine, right? So there are lots of application with the Arduino, right? So possibility to go with the Arduino. आप अगर Arduino के ऊपर थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा आपको एक्सपोजर अच्छा हुआ मिला, तो आप इसके अंदर इतना डीप में जा सकते हो कि फिर आपको एक आर्डिनो के अलावा कुछ नहीं दिख सकता, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, राइट? सो यू कैन स्टार्ट वेरी इजीली। फाइन, सो नाउ let's go with some demonstration of the Arduino. For that, if I have to switch to the multiple windows, that is why just a minute, huh? I have to change. Is it that your second screen should I pin? Sir, it may possible that I may require multiple of screen. It is because I require to show them circuit diagram from this particular PPT. Then I have to show them Arduino programming window also, and then of the video that is playing in this screen also. That is why Okay. I will share my laptop screen rather than that PPT, and then I will work on it, right? So it may be more Okay. preferable. Now I'm sharing my entire screen. Then I will try to make more feasible to see, right? Okay. So now I hope this particular window is visible to you. Is it visible, sir? Yes. This programming screen is now visible. And font is readable? Font is absolutely readable. Yes, thank you. So now just see this circuit. तो आप सर्किट देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक छोटा सा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ आर्डिनो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्किट में देखो कि यहाँ पे एक आर्डिनो का बोर्ड अवेलेबल है,
एक मैंने लाइट लगाया है, और ये सारी चीजें क्या है, उसका वर्किंग फंक्शन क्या है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स। फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, ये जो आपको डॉट डॉट वाला दिख रहा है, इट इज अ ब्रेड बोर्ड। जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, और तो उसको भी पता होगा। सो ये उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेट मी टेक द लेजर लाइट, राइट, लेजर पॉइंटर, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ breadboard. Okay, so breadboard you can use to connect the number of components with the any external interfacing circuit or board. ठीक है, तो यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, ये एक रजिस्टर है जिसको जस्ट करंट लिमिट के लिए लगाया गया है। तो यहाँ से मेरा 13 नंबर का डिजिटल आउटपुट है, उसको मैंने रजिस्टर में दिया है। रजिस्टर से मेरा ये एलईडी में जाएगा, एलईडी के एनालॉग टर्मिनल में जाएगा, एनालॉग पिन और एनालॉग टर्मिनल, राइट, एनालॉग लीड हम लोग बोलते हैं। और इसका जो कैथोड का लीड है उसको हम आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अभी आपको दूसरा भी मेरा विंडो दिखेगा into this particular presentation. Sir, can you Yes, focus yes, my yes, yes, video yes. screen? Yes, yes. This is your video on PCB. So हाँ, whenever it is required, I will pin up the different screen. Fine, no okay. issue. तो अभी मेरा जो भी एलईडी ब्लिंक हो रहा है ना, वो आप सर थोड़ा स्पॉटलाइट में ले सकते हो वीडियो का। हाँ, now it is okay. Now it is in the spotlight. It's clearly visible. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स कैन सी। ठीक है, तो आप देखो Yes, yes. यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा। कैन यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट वांट समथिंग टू शो यू, आई कैन शो थिंग्स। ओके फाइन, आई गॉट इट, फाइन। सो नाउ सी, यहाँ पे आप लोगों को ये बोर्ड दिखेगा। ठीक है, इज इट विजिबल, आर्डिनो बोर्ड? तो आप Clearly, देखो, clearly. जैसे ही हम लोगों ने वहां पे देखा था पिक्चर में, वैसे ही सेम बोर्ड मेरे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर ये आपका एनालॉग है, ये आपका पावर पोर्शन है, और ये आपके सारे डिजिटल पिन्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेड बोर्ड में एक एलईडी को लगाया है। एलईडी का जो भी एनालॉग पिन है, सॉरी एनोड पिन है, एनोड पिन को, ये आपको जो ब्राउन कलर का वायर दिख रहा है ना, वो इट इज अ एनोड, इट इज कनेक्टेड विद एनोड ऑफ द एलईडी, और ये मैंने 8 नंबर की पिन के ऊपर लगाया है। ठीक है, और आपका जो ग्राउंड है, इसका कैथोड है एलईडी, को मैंने यहाँ पे ग्राउंड नंबर की पिन, ग्राउंड की पिन पे लगाया है। ठीक है, एंड दिस यूएसबी इज कनेक्टेड विथ माय लैपटॉप। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आप आपका फोकस करो, जहां पे भी आपका फोकस चेंज होना है मैं आपको बोल दूंगा कि आपका फोकस कहां पे लेना है। ठीक है, अभी आप जो मेरा ये स्क्रीन आर्डिनो प्रोग्रामिंग का स्क्रीन देख रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस करो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पूरा प्रोग्रामिंग पोर्शन है। ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक फ्रेश प्रोग्राम लिख लेता हूँ आपके लिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये एकदम ब्लैंक स्क्रीन हो गया, एकदम मेरा टोटली ब्लैंक स्क्रीन हो गया, फाइन, जिसके अंदर अभी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम इसके अंदर डाला हुआ नहीं है। ठीक है, अभी जब भी आप अपना आर्डिनो का बोर्ड आपकी सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, तो ओके, यहां पे आप जाओ टूल्स में, टूल्स में आपको दिखेगा, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यहां पे डायरेक्टली चले जाना है बोर्ड। ये बोर्ड देखो, बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, आर्डिनो मेगा हो सकता है। आप देखो कितने टाइप के आर्डिनो अवेलेबल है, देखो जस्ट आप देखो लिस्ट, देखो कितने सारे आर्डिनो बोर्ड्स अवेलेबल है। इवन ये देखो, ये सारे आर्डिनो है, ये देखो कितने आर्डिनो है, ये सारे आर्डिनो बोर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको पहले, सबसे पहले आप कौन सा टाइप का बोर्ड यूज करते हो वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मानो कि आप आर्डिनो मेगा, अभी आप आर्डिनो मेगा मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, जस्ट वीडियो में आप एक बार स्क्रीन में देखो, ये आर्डिनो मेगा है, मेरे हाथ में अवेलेबल है। ठीक है, ये आर्डिनो मेगा है, और ये जो भी है छोटा वाला, ये आर्डिनो यूनो है। तो वो दोनों में अलग चीज है, वो दोनों के ड्राइवर्स अलग अलग है, दोनों के पिन कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग है। तो अगर आप लोगों ने आर्डिनो यूनो कनेक्ट किया है, और अगर आप आर्डिनो मेगा यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, तो प्रोग्राम लोड करने के वक्त आपको एरर मिलेगा, क्योंकि दोनों का पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। समझ में आ गया ना?
सो आपको पर्टिकुलरली बोर्ड कंपलसरी यहाँ से पहले सिलेक्ट करना है कि आप कौन से बोर्ड पे काम कर रहे हो, वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको उसको यूज करना है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है। ये देखो कॉम 3 पे मेरे पास यहाँ पे 3, 7, 4 3 पोर्ट दिख रहे हैं। उसमें से जहां पे मेरा आर्डिनो यूनो कनेक्टेड है उसको मुझे कंपलसरी कनेक्ट करना है। अभी मैं उसका भी थोड़ा आपको लॉजिक बता देता हूँ ऐसा क्यों करना पड़ता है। कि आपने आपका जो आर्डिनो का बोर्ड है वो आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। अभी देखो यहाँ पे आपको कॉम 4 और कॉम 7 भी दिख रहे हैं। वो क्या है, तो वो इंटरनली कहीं पे यूएसबी में कुछ हार्ड ड्राइव आपका कनेक्ट किया है, कुछ एसएसडी कनेक्ट किया है, वो यूएसबी के साथ आपके प्रोसेसर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। और अभी आपका जो भी आर्डिनो का बोर्ड है वो भी प्रोसेसर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो मुझे लैपटॉप को बताना पड़ेगा कि मैं ये जो प्रोग्राम सेंड कर रहा हूं वो कौन से यूएसबी पोर्ट पे सेंड करना है जिससे भी ये माइक्रो कंट्रोलर को मिले। क्योंकि जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे प्रोग्राम को मैं यहाँ पे मुझे अगर इस चिप के अंदर ये जो आर्डिनो यूनो का चिप के उसके अंदर प्रोग्राम को डालना है तो मुझे लैपटॉप को बताना पड़ेगा कि वो मेरा चिप कौन से यूएसबी के साथ कनेक्ट है। तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है। आप लोगों ने अगर ये पोर्ट सिलेक्ट नहीं किया तो आपका प्रोग्राम नहीं लोड होगा, ठीक है। ये दो चीज आपको कंपलसरी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है बिफोर यूजिंग द आर्डिनो। फाइन, नाउ सी यहाँ पे दो लूप हमारे पास है, जैसे मैंने बताया था वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। अभी वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप क्या है, तो बेसिक फंक्शन वॉइड सेटअप का क्या है देता है कि जो भी चीजें हम लोगों को सेटअप करनी है, सेट करनी है, जो सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम में ऑपरेट होगा। देखो एक चीज पहले और एक चीज समझ लो, कोई भी प्रोग्राम रहता है ना वो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है। यानी क्या होता है, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये देखा कि दोनों कमेंट है, यहाँ पे स्किप होगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे लाइन टू लाइन टू लाइन सारे प्रोग्राम इन टू दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी प्रोग्राम है वो ऑलवेज लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। जो प्रोग्राम का पहला लाइन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ऐसे लाइन टू लाइन होगा। फिर लाइन टू लाइन में कहीं पे लूप आता है तो वो लूप में अंदर घूमता रहेगा। लूप के बाहर जाने के बाद का जो लाइन है वो कब जाएगा, जब तक वो लूप खत्म नहीं होगा वो तब तक वहां पे नहीं जाएगा। तो लूप के बाहर उसको भेजना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज समझो, सारे प्रोग्राम लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वॉइड सेटअप है, वॉइड सेटअप में हम लोग ऐसी चीजें लिखेंगे जिसको सिर्फ एक टाइम एग्जीक्यूट करना है, उसको बार बार रन करने की जरूरत नहीं। एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, समझ में आ गया कि ये क्या है, पाथ खत्म। और वॉइड लूप में है, जो वॉइड लूप है वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही थी। आखिरी लाइन खत्म हो गया, वापस ऊपर आया, लूप के अंदर गया, तो फिर लूप के अंदर मानो कि मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखी है, जैसे कि ए बी सी डी, 4 लाइन लिखी है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, वापिस ए में चला जाएगा। ऐसे रोटेट कंटिन्यूअसली चालू रहेगा जब तक आपका आर्डिनो का पावर सप्लाई ऑन है, तब तक ये लूप घूमता रहेगा, ठीक है। तो वो वॉइड लूप है। अभी हम लोगों को मानो कि क्या करना है, मानो मैंने ये पिन निकाल लिया, अभी आप वीडियो में देखो, मैंने ये 8 नंबर की जगह पे मैंने 7 नंबर पे डाल दिया है। अभी मेरा एलईडी भी बंद है अभी, ठीक है, एलईडी में कुछ नहीं सर हो रहा वीडियो है। सबको विजिबल है? Yes, Sorry? yes, dear Sujit. Every screen is visible to everyone. देवेंद्र सर जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं वो भी है. You check your system because every time I'll be pinning the screen and everything is visible fantastically well with recording. Okay, sir. No, sir. Video is not visible. Say you have to in your mobile you have to pin screen. जैसे मैं कर रहा हूँ ना ये कि जैसे इसका YouTube में रिकॉर्डिंग जाएगा तो देवेंद्र सर जितना भी स्क्रीन अल्टरनेट कर रहे हैं वो बढ़िया मिलेगा। ये आपको मोबाइल में आपको सेट करना है वहां पे। मेरी स्क्रीन से यहाँ फर्स्ट क्लास दिख रहा है। सपोज दिस इज सर स्क्रीन नंबर 1. Fine, no issue. Say whatever the session sir is delivering. Can I interrupt you sir for the 1 minute? Yes. Dear students, मेरे पास टोटल मेरी दो स्क्रीन है। एक स्क्रीन में प्रोग्राम दिख रहा है और दूसरी स्क्रीन में वीडियो है जो मैंने 2 अलग अलग डिवाइस से लॉगिन किया है, ठीक है। तो मेरा एक वीडियो मेरा खुद का दिख रहा है, एक मेरे स्क्रीन शेयर किया है, और तीसरा जो चीज मेरा वीडियो है जिसको मैंने मोबाइल से ऑपरेट किया है। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके आपको वो जो भी पार्टिसिपेंट्स लिस्ट होता है ना उसमें से मेरा वीडियो ढूंढना पड़ेगा और उसको क्लिक करके पिन कर दो तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। यस सुजीत से मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, अभी
सर का जो ये यूट्यूब का सर्किट वाला स्क्रीन है, सो उसमें एक छाते जैसा सिंबल है, वहां इफ यू क्लिक यू विल हैव अ स्क्रीन लाइक दिस, फाइन. सो आई एम अल्टरनेटली डूइंग दिस फ्रॉम माय एंड एक्चुअली. दिस इज द प्रोग्रामिंग स्क्रीन देवेंद्र सर का जो है वो, फाइन. सो अगर आपका रह जाता है तो डोंट वरी, ये सर का कंप्लीट सेशन जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे, इसका रिकॉर्डिंग 11 बजे मैं आपके सब ग्रुप में रखने वाला हूँ. इज इट ओके? Is it okay, Sujit? Okay, Yes, sir. sir. Fine, fine. So whole recording will be nicely put on YouTube and it will be sent to most of the groups in Gujarat. Then you can continue. No issue. Okay, fine. Because it is already 10:30, 23, and I have to complete the total 4 programs. That is why I am just wanted to get in fast. Okay, fine. So whenever let's say I want to write the program, first of all, what I will do setup. अभी सेटअप मुझे क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्डिनो के जो 13 पिन, डिजिटल 13 पिन है, वो एज ए इनपुट भी यूज कर सकते हो, एज आउटपुट भी यूज कर सकते हो. तो ये प्रोग्रामिंग है, वहां पे वो बहुत सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ता है. आपको पहले से डिफाइन करना पड़ता है, बोल देना पड़ेगा कि ये क्या है. मैं अगर मेरा पिन अभी 7 नंबर की पिन पे मैंने लगाया है, तो 7 नंबर की पिन को मुझे क्या करना है, तो अभी मेरे केस में क्या करना है, मुझे 7 नंबर का जो भी पिन है, 7 नंबर का जो भी पिन है, उसे एज उसको आउटपुट यूज करना है, क्योंकि उसके साथ एलईडी मैंने कनेक्ट किया है जिसको मुझे ऑन करना है. तो 7 नंबर का आउटपुट मुझको एलईडी को देना है, तो 7 नंबर का पिन जो भी है वो मेरा आउटपुट में यूज होगा. तो उसका स्पेसिफिक स्टेटमेंट रहते हैं. जस्ट सीट प्रॉपरली. I will write pin mode. See, M is capital. It is mandatory. If I'm writing M is small, then what will happen? See, it is in black color. Now, if I'm writing capital mode, capital M, then see color changed. Color goes to the orange. So it is a statement syntax. This is what we call the programming syntax. हमको इसी में लिखना है पिन कैपिटल M ODE मोड. इट मीन्स मैं पिन का मोड डिफाइन कर रहा हूं कि वो इनपुट मोड में यूज होगा कि आउटपुट मोड में. सो आई राइट 7 आउटपुट. इज वेरी मच क्लियर नाउ. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर मुझे 7 नंबर की पिन से इनपुट लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पिन मोड 7 इनपुट. एज सिंपल एज इट इज. ठीक है, अभी सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वापस से बता रहा हूं कि इट इज वेरी सिंपल टू यूज. ठीक है, तो अभी आप देखो मुझे क्या करना है, कि 7 नंबर की जो भी पिन है, लेट मी रिमूव दिस स्टेटमेंट, राइट. लेट मी रिमूव दिस आल्सो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अवर केस, राइट. अभी मुझे लूप में लिखना है. तो अभी क्या होगा, आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा, वॉइड सेटअप में अंदर जाएगा, ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगा जिससे वो डिसाइड करेगा कि मेरा 7 नंबर का पिन जो भी है वो आउटपुट मोड में हो गया है. ठीक है, फिर उसके अलावा कोई भी लाइन है तो सीधा, कुछ भी नहीं है तो सीधा लूप में चला जाएगा. अभी मुझे क्या करना है, 7 नंबर की पिन को डिजिटल हाई करना है. ठीक है, इट इज बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग दिस पिन इन अ डिजिटल मोड. ये डिजिटल इनपुट आउट है, तो आई विल राइट डिजिटल WRITE, राइट. ठीक है, क्योंकि मैं उसको मुझे आउटपुट देना है, तो उसके ऊपर कुछ राइट करना, यानी क्या, राइट करना यानी उसको देना, उसके ऊपर कुछ डालना. ठीक है, उसके ऊपर कुछ डालना. तो आई विल राइट 7 नंबर पिन. तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका 7 नंबर का पिन हाई हो जाएगा, डिजिटल राइट. उसके अगेंस्ट में, जैसे में हम लोगों ने मोड में डिस्कस किया कि 7 इनपुट, तो एज ए इनपुट डिफाइन हो रहा है. तो अगर मुझे उस पिन को रीड करना है, आई एम जस्ट राइटिंग फॉर द एग्जांपल, राइट. आई एम जस्ट राइटिंग फॉर द एग्जांपल. So I will write digital read. Now digital read will be written in that form. अभी एक चीज प्रॉपरली ध्यान रखो, पिन के ऊपर जो भी सिग्नल आएगा वो मोमेंटरी सिग्नल आएगा, वो टेम्पररी या मोमेंटरी टेम्पररी सिग्नल आएगा, वो परमानेंट पिन के ऊपर नहीं रहेगा. तो आप अगर किसी चीज को रीड करते हो तो आपको कहीं पे उसको डालना पड़ेगा, कहीं पे उसको स्टोर करना पड़ेगा. और प्रोग्रामिंग में हम लोग जिस भी चीज को अगर स्टोर करना है तो वो हम लोग कहां पे डालेंगे, कुछ वेरिएबल में डालेंगे. तो आई विल राइट इंटीजर a इज इक्वल टू. तो अभी क्या होगा, आपके 7 नंबर का पिन के ऊपर जो भी कुछ आपको मिला है वो a में स्टोर हो जाएगा. फिर आप प्रोग्राम में कहीं पे भी कैसे भी यूज करो. ठीक है, इट इज जस्ट अ
लॉजिक दैट इज आई एम शोइंग यू, राइट राइट नाउ आई एम रिमूविंग दिस। अभी मुझे क्या करना है, डिजिटल राइट 7 हाई। अभी मैं प्रोग्राम किस चीज का बना रहा हूं, ब्लिंकिंग एलईडी। ब्लिंकिंग एलईडी यानी कि एलईडी को ऑन होना है, ऑफ होना है, ऑन होना है, ऑफ होना है। तो मैंने 7 नंबर की पिन को हाई कर दिया यानी कि ऑन हो गया। अभी मुझे वेट करना है, थोड़ा इसको ऑन रखना है थोड़े टाइम के लिए। सो आई विल राइट डिले, राइट। अभी इसका डिले का फंक्शन बहुत बहुत अच्छा है, वो अभी मैं बताऊंगा, मैंने पहले नहीं बताया इंटेंशनली। सी अगर कंट्रोलर में आपको यूज कर रहे हैं, तो कंट्रोलर में अगर किसी पिन के बीच में, आउटपुट के बीच में अगर डिले यूज करना है, तो आपको उसको टाइमर का अलग से प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। और टाइमर का प्रोग्राम यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा 5 सेंसर्स का प्रोग्राम लिखोगे ना, उतना सिर्फ उसका टाइमर का प्रोग्रामिंग रहता है। यहाँ पे आप लोगों ने डिले 500 लिख लिया, इट मींस हाफ सेकंड का डिले आपका बन गया। बस इतना ही लिखना है, डिले 500, हाफ सेकंड का डिले बन गया। डिले 1000, 1 सेकंड का डिले आपका बन गया। आर यू गेटिंग? वेरी सिंपल। देन आई विल राइट डिले, सॉरी माय मिस्टेक, डिजिटल राइट 7 low, fine, digital write 7 low, and again write delay 500, fine। You can see अभी मैंने सबसे पहले अभी ये प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, मुझे क्या करना है, एलईडी को ब्लिंक करना है। अभी हम लॉजिक, ये सिंटैक्स हो गए, जितना भी अभी तक है वो हम लोगों ने सिर्फ सिंटैक्स लिखा है। लॉजिक अभी हम लोगों ने नहीं सिखाया। लॉजिक क्या है, मुझे क्या करना है, एलईडी को ऑन ऑफ करना है, जो एलईडी 7 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो आई विल राइट डिजिटल 7 हाई, डिजिटल राइट 7 हाई। तो 7 यानी कि यहाँ पे जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, आपका 7 नंबर का पिन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद उसको हाफ सेकंड के लिए ऑन रखना है, वेट करेंगे हाफ सेकंड के लिए। फिर उसके बाद लो लिखेंगे तो फिर ऑफ हो जाएगा। वापिस से हाफ सेकंड के लिए वेट करेगा। ये हाफ सेकंड वेट करने के बाद प्रोग्राम हमारा कहाँ पे चला जाएगा, वापिस यहाँ पे चला जाएगा। सो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन, वापिस से याद करो, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, वापिस से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग आप अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम लोड कर रहा हूँ। प्रोग्राम लोड करते ड्यूरिंग दैट प्रोग्राम लोडिंग आप देखो आर्डिनो के बोर्ड में क्या हो रहा है, वो आप ऑब्जर्व करो। ये एलईडी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, आई एम हाइडिंग दिस एलईडी। आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर क्या चेंज हो रहा है ना, वो आप थोड़ा सोचो, ठीक है। आर्डिनो के बोर्ड पे देखो आप, अभी मेरे विंडो स्क्रीन पे कुछ नहीं है देखने के लिए। किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया आर्डिनो के बोर्ड में क्या हुआ? एनीवन हैव Yes, ऑब्जर्व? yes. That color has been blinking. LED is blinking. It is showing to everyone. ओके, सो आप लोग अभी ये एलईडी ब्लिंक हो रहा है, यानी कि मेरा जो 7 नंबर का पिन है वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। जब आपका प्रोग्राम लोड हो रहा था, तो ड्यूरिंग दैट लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम व्हाट हैपेंड कि आपका जो प्रोग्राम लोड हो रहा था, तब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा कि 2 ऑरेंज कलर का लाइट ब्लिंक होके चला गया। वो किस चीज का लाइट है? RxTX का, क्योंकि आपने आपके कंप्यूटर्स के साथ सिग्नल ट्रांसमिट किया, रिसीव किया, ट्रांसमिट किया, रिसीव किया, तो प्रोग्राम लोड हुआ। यानी कि आपका प्रोग्राम आपके लैपटॉप से आपकी पर्टिकुलर चिप के अंदर लोड हो गया। ठीक है, अभी ये जो पर्टिकुलर डिले टाइम है, मैं उसको हाफ सेकंड की जगह पे 1 सेकंड कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स मेक इट 1 सेकंड एंड लेट्स सी। आई हैव अपलोडेड द प्रोग्राम, नाउ सी द चेंज। ठीक है, ब्लिंकिंग इंटेंस आपका टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो आप सोचो, ये आप एक पिन के ऊपर आप ये प्रोसेस कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या कितना टाइम लगेगा? लेस देन द 2 मिनट। आपको 2 मिनट के अंदर आपके पास ये प्रोग्राम लिख के रेडी होके आप अपलोड करके आप ये ऑपरेशन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल, फाइन। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास मानो कि एक दूसरा एलईडी है, जो एलईडी के अंदर इनबिल्ट, मैं आपको बता देता हूं। लेट्स सी, नॉट ऑफ दिस, यस, मेरे पास एक दूसरा एलईडी है जिसके अंदर इनबिल्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनबिल्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स अवेलेबल है। Then now let's turn off this. Okay, let me see. ये आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल कैमरे के ऊपर, यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी का ये पूरा मॉड्यूल है। ये जो लाइट है इसके अंदर इनबिल्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू
लाइट्स अवेलेबल है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास जो भी लाइट है उसके रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, जिसको हम RGB एलईडी बोलते हैं, इनबिल्ट इसके अंदर रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है और ब्लू कलर भी है। मुझे क्या करना है, मेरा अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रेड को ऑन करो, आधा सेकंड का वेट करो, ग्रीन को ऑन करो, आधा सेकंड का वेट करो, ब्लू को ऑन करो, फिर अगेन आधा सेकंड का वेट करो, वापिस से रेड को ऑन करो। प्रोग्राम लॉजिक इज वेरी सिंपल, कनेक्शन इज ऑल्सो सिंपल। मुझे क्या करना है, अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो। इसके अंदर 4 टर्मिनल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 4 वायर लगा के रखे ऑलरेडी। ठीक है, 4 वायर मैंने लगा के रखे, 4 टर्मिनल है इसके। 4 टर्मिनल है, जो पहला टर्मिनल है वो आपका एक रेड है, दूसरा ग्राउंड है, तीसरा ग्रीन है और चौथा ब्लू है। ठीक है, तो अभी मेरा दूसरा, यहां से आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे 4 वायर है, जिसमें पहला जो व्हाइट कलर का वायर दिख रहा है वो रेड के लिए है, जो दूसरा आपको मजेंटा जैसा दिख रहा है वो मेरा कौन सा वायर है, ग्राउंड है। डार्क ब्लू कलर का वायर है वो मेरा ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर। चलो मैं इसको ऑल्टरनेट कर देता हूँ। ठीक है, लेट पुट दिस ग्रीन इनटू द ग्रीन एंड ब्लू इनटू द ब्लू। ठीक है, तो मेरे पास अगर कलर केबल है तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर का ग्रीन एलईडी के लिए, ब्लू कलर का हो गया ब्लू एलईडी के लिए, रेड कलर का केबल मेरे पास नहीं। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी व्हाइट इज फॉर द रेड, दैट मजेंटा इज फॉर द ग्राउंड, ग्रीन कलर इज फॉर द ग्रीन एलईडी, ब्लू कलर इज फॉर द ब्लू एलईडी। ठीक है, चलो हम सेम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं जैसे इसमें बताया है। ठीक है, रेड कलर का जो भी है उसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, आई विल कनेक्ट इट विद द 11 नंबर, राइट। सो आपका आर्डिनो का ये पुराना कनेक्शन हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, let's remove this LED and let's put this besides. Now this particular white wire will goes to the 11 number as per the circuit given into the screen. Fine. Then उसके बाद magenta कहाँ पे चला जाएगा, ground में चला जाएगा, it will goes to the ground. Everything is written on the board, not to worry, huh? Ground pin कौन सा है, 11 कौन सा है, वो सब बोर्ड पे लिखा ही है, so not to worry with that. फिर आपका क्या हो जाएगा, हाँ, ग्रीन कलर का जो भी है वो आपका 10 नंबर में चला जाएगा और ब्लू कलर का आपका 8 नंबर में चला जाएगा। चलो कनेक्शन हमारा हो गया। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग स्क्रीन। लेट्स टेक अनदर न्यू प्रोग्राम, ब्लैंक प्रोग्राम। लेट मेक मोर। ठीक है, नाउ चलो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे सबसे पहले व्हाइट सेटअप में क्या करना पड़ेगा, यानी एनी स्टूडेंट्स कैन कमेंट, व्हाइट सेटअप में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, कुछ पिन को डिफाइन करना पड़ेगा, हमने 3 पिन को और डिफाइन 4। करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे कितनी पिन डिफाइन करेंगे, सर 3 पिन, क्योंकि एक तो ग्राउंड है ऑलरेडी। ग्राउंड को तो छोड़ ही देना, 3 पिन डिफाइन करेंगे। कौन सी 3 पिन हम लोगों ने कनेक्ट की है, 10, 8 और 11 आई थिंक। ठीक है। सो रेड के लिए हम लोगों के पास 11 नंबर पिन है। ठीक है, फिर उसको डिफाइन करेंगे एज अ आउटपुट। फाइन, लेट्स मेक द कॉपी ऑफ दिस ट्री, then we will change the pin number. Fine, v and 11, 10 and 9 पिन कोड डिफाइन हो गया, यानी कि 9, 10 और 11 हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेट्स राइट हियर लाइकवाइज, दिस इज फॉर रेड कलर, दिस इज फॉर 10 नंबर इज फॉर व्हाट, ग्रीन कलर, राइट, ग्रीन कलर एंड sorry, and this is for blue color. Fine, now it is well defined. Now it is well defined, right? 3 colors were defined it. Now it is clearly defined here. I cannot make it small. Is there anything? It doesn't have any option. फाइन, ओके, चलो अभी हम लोग लूप में चले जाते हैं। हम लोगों ने पिन डिफाइन कर दिया। ठीक है, हम लोग लूप में चले जाते हैं। लेट्स रिमूव दिस अननेसेसरी स्पेस सो प्रोग्राम कैन गेट अप। ठीक है,
सो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे रेड ऑन करना है. तो व्हाट आई विल राइट, व्हाट शुड आई राइट? digital right, then डिजिटल राइट ऑन 10 पिन नंबर. 11 number comma high. ओके, तो डिजिटल राइट 11 कॉमा हाई. ठीक है, आई विल पुट द डिले ऑफ हाफ सेकंड. देन व्हाट शुड आई डू? अभी मुझे क्या करना है? दूसरे कलर के लिए यही सेम कोड लिखना है और पिन दूसरे नंबर कलर के लिए उसका सेम स्पेसिफाई लिखना कर. है, लेकिन पहला कलर ऑफ करना पड़ेगा ना. यस सर. पहले पहले इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा ना. फिर 11 नंबर डिले को भी. ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद इमीडिएट हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर को हाई करेंगे. ठीक है, अगेन आई विल पुट द डिले ऑफ 500. Then again I will put the same code C B 10 should be low and 9 should be high. Then after delay of 500. Fine. And then again अभी और एक चीज क्या करना पड़ेगा? I should 9 को लो करना पड़ेगा. 9 को लो करना पड़ेगा. यस, नाउ सी द लॉजिक. ठीक है, अभी ये मेरा, अभी आई विल पुट हियर रेड ऑन. ठीक है, यहां से मेरा रेड ऑन होगा. फाइन, आई विल पुट हियर रेड ऑफ. देन उसके बाद क्या होगा मेरा, यहाँ पे ग्रीन ऑन. ठीक है, फिर यहाँ पे वेट फॉर हाफ सेकंड. फाइन, देन यहाँ पे अगेन वेट फॉर हाफ सेकंड. ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्रीन ऑफ. फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, ब्लू ऑफ. फिर अगेन वेट फॉर हाफ सेकंड. ठीक है, फिर आपका ब्लू ऑन पहले से. यहाँ पे ब्लू ऑन होगा ना, ऑन, एंड देन ब्लू ऑफ. फाइन, हो जाएगा. लेट्स, कैन वी चेक दिस? लेट्स चेक, लेट्स सी ऑन दिस पर्टिकुलर video screen. Let's see, let's first of all save this as a RGB, and then let's upload it on the screen of laptop computer. अभी कंट्रोलर के बोर्ड पे ऊपर अपलोड हो जाएगा. एक कलर मिक्स हो रहा है क्या? फिर भी डिले रह गया. 11 हाई, वेट 11 लो, 10 हाई. ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा है ना. नाइन 10 11. This is RGB ना. Yes, just a minute. हाँ, ब्लू ग्रीन रेड. अच्छा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक इश्यू है. to check here. अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, हो गया. व्हाट इज द ग्राउंड 11, then what is this? 9. What is of
Is it okay now? Can you see 3 colors? Red, green, blue, red, green, blue, red, green, blue, right? If I'm increasing the delay, then it will be more preferable to see. Here 1 0. Let's increase the delay, then color will be more visible to see. Is it okay? So now you can see here. So just to see, it is just a LED, right? ये LED की जगह पे और हम अगर कुछ और चीज रखते हैं तो वो भी काफी सिंपल ही हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? Fine. Now let's move to the another program. What is for that? Okay, IR sensor. IR sensor, it is also an obstacle. It is also obstacle sensor. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, सेम ऐसा ही सेंसर मेरे पास हाथ में अवेलेबल है, ठीक है? Let's turn off the light, or we can use this light as a focus on this particular sensor, ठीक है? सेंसर पे फोकस कर सकते हैं इससे. I hope कि आपको सेंसर दिख रहा होगा. Let's remove this all things and see this sensor, ठीक है? The same sensor that is available in the picture. This is called IR sensor. IR sensor, it is also called the obstacle sensor. Obstacle. ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे छोटी सी 2 लाइट दिखेगी यहाँ पे, जैसे कि let's take this pen pointer. See here, over here. ठीक है, ये लाइट है 2. ये एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिगर में देखो, ये ब्लू कलर और ब्लैक कलर, तो ये ट्रांसमीटर है और रिसीवर है. तो अगर आप ये मानो कि यहाँ पे, अगर मानो कि आपने ये आप वीडियो में देखोगे तो सेंसर के ऊपर में अगर फिंगर रख रहा हूँ इसके ऊपर, सेंसर की लाइट के ऊपर, तो ये ब्लू में से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, मेरे फिंगर से रिफ्लेक्ट होके वापस से ब्लैक में जाएगा, ठीक है? तो ये it is a IR transmitter receiver. It is IR transmitter receiver. It will transmit the signal also, and it will receive the signal also. ठीक है? So it will transmit the signal, it will receive the signal. तो आप जब भी यहाँ पे उसमें फिंगर आएगा और ट्रांसमिट रिसीव होगा, तो आप इसके अंदर 3 पिन है. आप देखोगे यहाँ पे येलो, ऑरेंज और रेड. जो रेड है वो आपका सप्लाई है, इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए VCC है. एक आउट है जो उसका आउटपुट पिन है, और येलो कलर वाला जो है वो ग्राउंड है, ठीक है? येलो कलर वाला जो भी है वो ग्राउंड है. फाइन. तो आप जब भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर सर्किट में ये सेंसर में यहाँ पे फिंगर रखोगे और आपका सिग्नल ट्रांसमिट होके फिर रिसीव होगा, तो जो ये आउटपुट का पिन है वो हाई हो जाएगा, जो भी आउटपुट का पिन है वो हाई हो जाएगा, ठीक है? सो नाउ let's see the program and let's make the connection accordingly. Now I have a program already written, so I will use that only, right? So IR program is already written, so I will not spend time to write the code. I will just explain the code. It will be more easy to use, right? So you can see here, I obstacle pin here I have defined already. So here, see another technique to use the particular pin, that is यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया I obstacle, ठीक है? I obstacle पिन करके एक वेरिएबल डिफाइन किया. उस वेरिएबल को मैंने 2 नंबर की पिन का जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, वो मैंने इसे डिफाइन कर दिया. सो आई कैन राइट हियर पिन मोड, दिस पर्टिकुलर पिन मोड एज अ इनपुट, ठीक है? और मैंने एक एलईडी का आउटपुट ले लिया, ठीक है? एलईडी आउटपुट ले लिया. फाइन. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रीड द ऑब्स्टिकल, ठीक है? तो दिस इज 2 नंबर. 2 नंबर का जो भी सिग्नल है वो डिजिटल रीड होके आई ऑब्स्टिकल में स्टोर होगा, ठीक है? अभी इसका जो भी ये जो पर्टिकुलर आई ऑब्स्टिकल लो यानी कि अगर वहां पे हम लोगों को एक सिग्नल मिलता है, यानी इट विल बी गोज टू द लो, ठीक है? ओके, सो दैट इज माय रिवर्स कंसेप्ट, राइट? सो दैट द टाइम मैसेज विल डिस्प्ले देयर इज एन ऑब्स्टिकल और आपका एलईडी हाई होगा, ठीक है? और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, so there is no obstacle, the path is clear, then LED will off and it will be wait for the, let's make it 500, right? Delay. Fine.
Now let's connect it. Let's connect this. This particular red is goes to the VCC. It means I will take this 5 volt available on the board. It is over here. Yellow is for the ground. Fine, and it is connected on the 2 number pin, right? It's the 0, 1, 2. So now it is clear, right? My system sensor is connected with this. Fine. Now what I'll do, the same LED I have used, that is I am going to use for my concept. Fine. The same LED that is I am going to use. It is round 8, 9, 10, 11, 12. Round, and it will be goes to the 30. Now let's load the program and let's check what is happening. Fine. Can you see this? Can you see this? Can you observe? I am putting the finger on this obstacle. My LED goes on and it is off. Now similar with this, you just monitor this also. Right? There is nothing. It means path is clear. Message is displayed on this particular programming screen. See, if I am putting the finger, observe over there what is written. There is an obstacle. There is an obstacle. It is obstacle. My finger is obstacle here over here. My finger is obstacle, and LED goes on. It is off. LED goes on. It is off. Fine. So now you just think you are making a robot. You are making a robot. आप लोग रोबोट बना रहे हो. रोबोट में आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर चीज है वो एज अ आई आपको वहां पे रखना है, सामने रखना है. ठीक है, ये आपने सामने फिक्स कर दिया. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो पोर्ट है, यहाँ पे ये पोर्ट जो भी पोर्ट है उसके आप उसका आपका डिस्टेंस और सेंसिटिविटी आप उसको मेंटेन कर सकते हो. वो आपने डिफाइन कर लिया. फिर सोचा कि इतने डिस्टेंस में आएगा, अगर ये ऑब्स्टिकल मिला है तो इट हैज टू टर्न लेफ्ट और राइट. इट विल बी डिसाइडेड बाय इटसेल्फ. इट कैन डिसाइड बाय इटसेल्फ इट्स ओन. ठीक है, अगर ये हो सकता है तो आप अभी ऐसे जो ये सेंसर से आप कितनी सारी चीजें बना सकते हो. अगर कुछ ऑब्स्टिकल आ गया तो लाइट ऑन, अगर ऑब्स्टिकल निकल गया तो लाइट ऑफ, ऑब्स्टिकल आ गया तो लाइट ऑन, ऑब्स्टिकल निकल गया तो लाइट ऑफ, आ गया लाइट ऑन. So many things you can develop by using the sensor. It is now up to you कि आपका particular interactive visualization कैसा है. Otherwise this can be used. और इसको डिफाइन करने और इसको यूज करने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं. रेडीमेड this sensors are available and program is also very simple. See, if here I have used if condition. If what is my obstacle is the low, it is a reverse concept. So whenever the particular signal is coming, output goes to the low, right, and it is high. That is what is the concept in this case, right? So that you can check. There are some IR sensor available where whenever there is an obstacle, output goes to the high, and output otherwise output goes to the lows. Fine. So that is also available. Fine. So that you can do with this. Fine. Oh, just a minute, huh, sir? Oh, sorry. Okay. Right. So now another is the LDR, light depending register. Another program is the light depending register, right? Now light depending register, it means you can see here, it is a light depending register. So whenever it is the light appears on it, whenever it has a light appears on it, it gives some output, right? It has some fixed resistance. It has some resistance, and whenever you are putting finger on it, resistance increases. So light depending resistance, it means अभी मानो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइट है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा.
और उसके ऊपर आप लोगों ने अगर उसके ऊपर आप अंधेरा हो गया तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग. Fine. So that is the light depending resistance. So that is available with me here. You can see here the same the same circuit that is as you can see in the circuit, right? It has also three terminals. It has also three terminals. One goes to the supply, one goes to the ground, and another goes to the analog. Now this is the example of analog signal. तो अभी दो हम लोगों ने जो example देखे वो डिजिटल थे. अभी हम लोग दो देखेंगे वो analog signal है. ठीक है? So let me remove this particular thing. Let me use this LED as it is. Fine. Let me use this as it is. Fine. Let me use this concept. Let me use the another pin. Let's say 10 number pin. Right. Now this is the LDR. Fine. So what I'll do, the same thing that I'll do. This particular signal that is goes to the analog. That is now I will use the analog pin, right? This is analog pin. Fine. Then middle terminal will goes to the let's say 5 volt. Middle terminal will goes to the 5 volt, and now this last terminal will goes to the ground. Fine. Now this IR is connected. Now what project objective is, whenever light appears on it, LED should goes off. But whenever it is coming dark, LED should goes on. Right? LED should goes on. Fine. So for this case also, let goes to the programming window. And then I have a programming field for that also, LDR and LDR. Fine. So now see. Oh, sorry, it is a digital. 0. Yes, analog read. Fine. So now see what I did here. It is on 7. Fine. So what I did in this case, it will read the signal. First of all, it will read the signal. Let's see in the loop. Right. First of all, it will read the signal. That will goes into the value. Right. So आपका जो भी analog pin है वो analog read करेगा. Now see, whenever you are reading the analog pin, it will be analog read. Right. So analog read, आपका जो भी सेंसर पिन का जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे एनालॉग रीड करके कहाँ पे चला जाएगा, वैल्यू में चला जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद इट इज जस्ट टू प्रिंट, राइट. आप वहां पे प्रिंट होगा, कुछ नहीं. फिर यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका इंटरफेसिंग किया. मैंने उसको पहले कनेक्ट किया. ठीक है. नाउ लेट्स सी मैं हम लोग एलईडी के बारे में नहीं सोचेंगे अभी. लेट्स सी हियर. आपको यहाँ पे नंबर दिखेंगे. ठीक है. ये जो नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या नंबर्स है, तो अभी देखो ये जो पर्टिकुलर नंबर्स है वो क्या है, ये लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. एलईडी के ऊपर मत देखो, अभी सिर्फ प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे देखो. यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे. अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कवर करता हूँ. रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. नाउ आई एम पुटिंग इनटू द फुल लाइट. I'm trying to put in the full light. Right. Now you can see the number is increasing. Let me use my phone flashlight. It will be more preferable. Oh, I cannot turn on the flashlight during the meet or what? Right. So if I am putting in this particular, it has a like, I have some low intensity. That is why. So if I am putting into the bright area, then light appears on the LDR and resistance would be increased. ठीक है. It is very sensitive to light, that is why. Now if I am putting finger on it, let I am closing it, like I am closing it.
then resistance is decreasing. अभी मैंने क्या यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि अगर ये वैल्यू 320 से कम होगा तो मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए. 320 से कम होगा तो मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए. अभी वैल्यू कितना है देखो, नियर अबाउट 290, 270, 300. इट इज लेस देन 320. मैंने पहले उसको क्या किया, कनेक्ट करके फिर ये वैल्यू को ऑब्जर्व किया कि ये कितने वैल्यू में जा रहा है. अगर मैं फिंगर कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, उससे मैंने थोड़ा मार्जिन लेके फिर उसको डिफाइन किया कि अगर वो इतना जा रहा है तो अभी देखो मैं उसको फिंगर से पूरा कवर कर रहा हूं तो मेरा एलईडी कंप्लीटली ऑन है. अगर मैंने फिंगर निकाल लिया, अगर जब भी मेरा वैल्यू 320 से अप होगा, अभी देखो 320 से अप हो गया तो एलईडी गोज ऑफ. एट सम टाइम इट इज अपीयरिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम इंटेंसिटी. ठीक है, रूम का लाइट इंटेंसिटी थोड़ा ऐसा इसी वजह से. लेकिन आप देख सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर डिस्प्ले व्हेनेवर द नंबर गोज above the 320 LEDs goes off, and whenever number goes below the 320 LEDs goes on. ठीक है, तो अभी ये तो सिर्फ एक छोटा सा सेंसर है, ये छोटा सा बहुत छोटा सेंसर है. अगर यहाँ पे आप सोचो कि आप ये छोटे से सेंसर की जगह पे आप मानो कि सेंसिटिव और अच्छा वाला सेंसर यूज कर रहे हो, तो आप जो भी अपनी स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम जो आप देख रहे हो कि अगर 6 बजे के बाद अंधेरा होता है तो फिर एलईडी स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है. So that you can develop by using this concept, right? That you can develop by using this concept. Very simple concept. Okay, fine. Fine. So that is what from my side that you can see here. We have discussed some program and we have seen some interfaces, right? Besides of there are so many sensors available that I can show you into the video. See here, these are the sensors, right? You can see in the box. So these are the many types of sensors are available. So many. This particular sensor is called joystick, right? This sensor is called joystick. Then you can see here joystick, right? So if you want to make the robo with the right, left डायरेक्शन यू कैन मेक इट. आप लोगों ने रिमोट पे देखा होगा कि आप ऐसे जॉयस्टिक में लेफ्ट राइट करते हो तो इसके हिसाब से आपका रोबोट ऑपरेट होता है. ऐसे बहुत सारे साउंड सेंसर्स अवेलेबल है, स्पीकर सेंसर अवेलेबल है. तो ये बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल है जिसको आप अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लाइक इन 1 hour or more than 1 hour of program it is not possible to cover all the sensors, but you can use. And if any students have any requirement for the Arduino programming or anything, any query regarding this Arduino programming controller, they can contact me at any point of time. I hope the particular things that is expected from the session is covered by me, and if it is required furthermore, then I will be available for there any point of time. Thank you so much for your concentration and your appearance, availability in this session, and thank you so much Mokaria sir, Dr. V.S. Purani sir, and the team of the SSIP for giving me this opportunity to represent this concept of Arduino for the small duration of time. Thank you so much sir. Now I'm concluding my session from this. Thank you sir. Fine. Thank you, Devendra sir. Now, some students' query was there, Manish query was there. So, जब भी 3 screen के बीच में सर share कर रहे थे, तो every time I have pinned screen. So, whenever you will be looking the YouTube session, each and every part you will be having with very clarity. So, this YouTube session link will be putting somewhere near 11 to 11:30 AM in all the groups of of Arts Institute as well as different groups from Gujarat. So आपका वो query solve हो जाएगा. When I'll be ending the recording session, the streaming will be available. To the viewers who will be listening this recorded session and giving their queries at SSIP Bootcamp email address is that Devendra sir is a faculty of electrical engineering. As I told, he's done his ME in electrical power electronics and drives from Nirma University. B in ME he did in 2009. B he did in 2007 from Lucky Darji Engineering College in Morbi, and he did his diploma in 2003 from Government Polytechnic Valsad. His SSIP project guided at our institute, and some areas are GSM based solar water pump system, BLDC motor based DC drives, smart eye for blind people, and smart library system. These are some of the topics in the near time he has worked. And to all the viewers who will be watching the YouTube backup session at this, please subscribe to the channel and
हमारे YouTube के सब सेशंस को आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपका क्वेरीज हमें मिलता रहता है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो भविष्य में जो जेईसी वलसाड के आने वाले कार्यक्रम है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देवेंद्र, वन स्पेसिफिक क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम स्टूडेंट. The question seems to like this. Actually, I was also viewing some syllabus of 12th standard students, where they Yes. have semiconductors and all those things in their syllabus. So Yes, sir. his question was like this, that LDR से उनका ट्रांजिस्टर से या किसी और एप्लीकेशन से भी LDR बेस्ड कैंपस लाइटिंग वो कर सकते हैं, तो और वो आर्डिनो से भी कर सकते हैं। तो उनके पास वैरायटी ऑफ 5 ऑप्शंस है किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बी स्पेसिफिक वो आर्डिनो कब यूज करेंगे, ऐसी एक क्वेरी जो है हमारे स्कूल के स्टूडेंट से है। अच्छा, ठीक है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट। अभी कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट जो सिस्टम रहती है, उसमें कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट सिस्टम में पहले ट्रांजिस्टर के साथ एलईडी को इंटरफेस करके आप यूज कर सकते थे, ठीक है। तो वहां पे वो सारी सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंटली यू रिक्वायर एलडीआर फॉर ऑल दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। आपके पास मानो कि एक स्ट्रीट लाइट को ऑपरेट करना है, एक रिले को, तो वहां पे एक आपको एलडीआर चाहिए, दूसरी सिस्टम के लिए दूसरा, तीसरी सिस्टम के लिए तीसरा। अगर आप लोगों के पास एक लोकेशन में आपने आर्डिनो के साथ सिर्फ एक एलडीआर यूज किया, तो आप आर्डिनो के हर एक पिन से अलग अलग रिले ऑपरेट करके पूरी स्ट्रीट लाइट को एट द सेम टाइम ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगेंस्ट ऑफ दैट, मानो कि आपका कोई ऐसा एरिया है कि वहां पे स्ट्रीट लाइट को आप सबके साथ नहीं, बट आफ्टर गेटिंग सम टाइम आपको मिला गया, मुझे 6 बजे मेरा थोड़ा इंटेंसिटी मेरा एटमॉस्फेयर का कम हो गया, लाइट इंटेंसिटी कम हो गया, फिर भी मुझे 1 घंटे के बाद उसको ऑपरेट करना है एक क्लियर लाइट को इंडिपेंडेंटली, दैट यू कैन डू यूजिंग द Arduino. So that kind of things you can manage using the Arduino. That is why where you require such a specific application, you can go with the Arduino. But if you want to operate 1 or 2 street light, then you can go with the transistor circuit also. Fine. And one thing to add with Devendra's statement, that students, there you have some fixed operation. What you learned in 12th standard, actually CBSE board syllabus is there, I think so, in a transistor terminology. Well, LDRs, आप LDR से आप ट्रांजिस्टर को ऑन करवाते हैं, और बाद में आप उससे रिले आउटपुट ऑन करते हो, रिले से आप एक्चुअल आपके लोड को ड्राइव करते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह को। सो व्हेन यू हैव सम स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन कि मुझे ये चाहिए तो मुझे सामने ये करना है, ये करना है तो ये करना है, तो उस केस में आप आर्डिनो यूज करेंगे। जैसे पहले सेशन में आपको बताया गया था कि PLC बेस्ड, IoT बेस्ड स्विचिंग ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम क्राउड मॉनिटरिंग से लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो खाली मेरा टारगेट जो है वो स्विचिंग नहीं रहेगा, मुझे क्राउड मॉनिटरिंग करना है, या एक्सीडेंट मॉनिटरिंग करना है, या व्हीकल स्पीड मॉनिटरिंग करना है, तो जैसे ये सेशन में भी आपको बताया गया कि वहाँ बहुत सारे सेंसर्स हैं और बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं। आर्डिनो आज के टॉपिक में इसलिए आपको यूजफुल है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो है, जो हम इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं, वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में आर्डिनो को यूज बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं अभी। तो इसलिए ये सेशन आपको बहुत अच्छा काम में आएगा। और जैसे ये सेशन खत्म होता है, आप इसका YouTube रिकॉर्डिंग खास देखिए। अब कल के लिए एक विशेष सूचना है कि कल हमारा जो SSIP बूट कैंप जो है उसका एंडिंग सेशन है। इट इज बेस्ड ऑन टॉय इनोवेशन चैलेंज। सो पहले हाफ में सेशन होगा, और बाद में जो मेरे साथ इंडस्ट्री के मेंटर जो जुड़ेंगे, जो टॉयज अपने हाथ से बनाते हैं, और उनके सन है वो भी ऑटोमेशन में मास्टर है, तो उनके साथ सीधी बात होने वाली है बाकी के सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में प्रेजेंटेशन रहेगा और सेकंड हाफ में उनसे सीधी बात रहेगी। और जो ये 7 दिन के सेशन के जो प्रश्न है, जो आपको उनके उत्तर यही सेशन में से मिलेंगे, तो उसकी जो है वो एक गूगल डॉक फॉर्म विद फीडबैक फॉर्म जो है वो जितने पार्टिसिपेंट रजिस्टर हुए हैं उनको दिया जाएगा। तो जैसे बूट कैंप की शुरू में 627 या कुछ ऐसा फिगर था कि जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है बूट कैंप चालू होने से पहले, तो उनको ये सर्टिफिकेट का जो माध्यम है वो उनका थ्रू हो जाएगा। सो हमारे साथ बने रहिए जेईसी वलसाड की जो ये jecv.official यूट्यूब चैनल पे, और खास करके ये और इसके आगे के जो सेशन है उनका रिकॉर्डिंग खास आप देख लीजिए, क्योंकि आपका जो मेंटर्स जो क्वेश्चन सेट करेंगे उसका जवाब कहीं ना कहीं आपको सेशन में ही मिलेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सर, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आई एम जस्ट नाउ stopping the recording so that it will be